So now where should be the dining hall in the house? So the dining hall should be in the east, that is best, and that is the E4 and the E5 zone. And even whenever the person is eating, so जब भी आप खाना खाते हो या जब भी whenever you are eating, so make sure that you must be facing east or north. अगर आप ईस्ट और नॉर्थ फेस कर कर अगर आप खाना खाते हो तो आपका खाना भी जल्दी डाइजेस्ट होता है एंड इट विल बी गुड फॉर योर हेल्थ टू. Master bedroom should be in the southwest. Guest bedroom should be in the northwest because northwest is a zone जहाँ पर चीजें जाती जल्दी है. So northwest में आपको guest का bedroom रखना चाहिए. If the entry is from S6 to W3, check the map. Change the house. No option. बहुत सारे वास्तु में ऐसे भी zones हैं जहाँ पर like from S6 to W3 आपके पास मैपिंग आई है और X6 से W3 के बीच में अगर एंट्री आती है फिर ऑप्शन नहीं है. लाइक लॉट ऑफ थिंग्स आर रिस्ट्रिक्टेड इन वास्तु की आपकी कोई भी रेमेडीज नहीं है, देन पर्सन नीड टू चेंज द हाउस. तो आपको उसको सेल कराने में यू शुड हेल्प देम टू सेल आउट दैट हाउस. Puja room in the northeast, best if not possible in the west, as it is a space element, all wishes get fulfilled. God should facing the east, never to be keep in the south direction. So आपका पूजा रूम होना चाहिए बेस्ट, इट शुड बी द नॉर्थ ईस्ट. बेस्ट इफ नॉट पॉसिबल तो आप वेस्ट में भी कर सकते हो, अदरवाइज वेस्ट में नहीं किया जाता है. बट जैसे कि बहुत सारे फ्लैट्स हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द फ्लैट्स, व्हेन यू आर डूइंग द वास्तु फॉर द when you're doing the vastu for the flats बहुत मुश्किल होता है to arrange things and even you can't do lot of construction within the apartment. तो आप उनको सेकंड पोजीशन दे सकते हो कि वो वेस्ट में भी कर सकते हैं, as it is a space element. All wishes get fulfilled. God should be facing east, never to be kept in the south direction. तो आपको वेस्ट में आप मंदिर कर सकते हैं अगर आपको नॉर्थ ईस्ट नहीं मिल पा रहा है या फिर घर का नॉर्थ नहीं मिल पा रहा है मंदिर के लिए, देन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप उसको वेस्ट में दे सकते हो. बट मेक श्योर करना है कि जो गॉड की आइडल है दैट शुड नेवर फेस द साउथ. गॉड की आइडल्स को हमेशा ईस्ट फेस करना चाहिए. दे शुड ऑलवेज फेस द ईस्ट. If the space is constrained as well, the shelter to be fixed in the northeast corner of the drawing room for keeping idols in picture for the worship. बहुत ही बार ऐसे देखा गया, especially this is for the people who live in the flats. अगर आपका नॉर्थ ईस्ट है, आपके पास प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट है, बट there is a limited space in the northeast, or you have a big space in the northeast, but you can't give whole space for the temple. तो आप उसको कैसे डिवाइड कर सकते हो? आप उसको किसी शेल्टर के थ्रू, एक डिवाइडर के थ्रू आप उसको डिवाइड कर सकते हो ताकि आपका टेम्पल विल बी इन अ डिफरेंट जोन जहां पर आप भगवान की आइडल्स रख सकते हो एंड ड्राइंग रूम विल बी द डिफरेंट. Children bedroom and idol location should be the northeast for the boys and the northwest for the girls. Other location include east and west. यहाँ पर चिल्ड्रन, वो वाली चिल्ड्रंस की बात हो रही है जो अनमैरिड है. इफ दे आर मैरिड देन दैट नीड टू नॉट टू बी इन द नॉर्थ ईस्ट. बट अगर अनमैरिड चिल्ड्रन है और आप अगर मेल को अगर आप मेल बच्चे को अगर आप नॉर्थ ईस्ट का रूम देते हैं, इन दैट केस वो जो बच्चा होएगा उसका फोकस रहता है स्टडीज में, कंसंट्रेशन रहता है और साथ में वो गलत चीजों में भी इन्वॉल्व नहीं रहता है. नॉर्थ वेस्ट में देना चाहिए लड़कियों का रूम एंड इंक्लूड ईस्ट एंड द वेस्ट टू. The position of the toilet should be in the W and W, that is west or northwest or east southeast, but should never be in the northeast direction of the house. So this is a point that you need to take care of. Wardrobe, almirah, cupboard, and all should be constructed on the south or the west wall. Number of doors and the windows should be the even in the house. So आपकी total number of doors and windows जो आपके घर में होनी चाहिए, that should be in the even number. Balcony should be towards the east or the north, should be avoided in the south or the west. If the south or west balconies can't be avoided, then bigger the larger the balcony should be provided in the north and east. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी जो बालकनीज होनी चाहिए ज्यादातर नॉर्थ और ईस्ट में होनी चाहिए. बट इन एनी केस ऐसा नहीं हो पा रहा है कि आपको साउथ में कोई बालकनी नहीं दो या वेस्ट में ना दो, तो इसको अगर आपको रेक्टिफाई करना है तो आपको अपनी नॉर्थ और ईस्ट की बालकनी का साइज थोड़ा सा बड़ा करना है एज कम्पेयर टू द साउथ एंड वेस्ट टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट. एनी क्वेश्चन सो फार? तो ये जो एंट्री है आपकी S6 से लेकर W3 तक आपको मैप में, तो अब इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है. अगर आपको कोई भी घर मिल रहा है, लाइक पीपल विल हायर यू कि वो घर खरीदने जा रहे हैं, वो मल्टीपल घर देखते हैं, तब तो आपको बिल्कुल भी उनको S3 W3 नहीं देना है. लेट्स से कि कोई अपने घर पर ऑलरेडी रह रहा है और वो फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर पा रहे और आपको उसका गेट दिख गया है किसमें, तो आप उसको बोलो कि सेल द हाउस.
क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, देयर इज नो रेमेडी। और आप अगर क्लाइंट्स को सीधे सीधे बोलोगे सेल द हाउस, लोग सेल आउट करते भी हैं, बिकॉज अब आपके पास कोई रेमेडी नहीं है। तो आप उसको कुछ भी ऐसी रेमेडी मत दो, मतलब आई मीन टू से कि कुछ भी अपनी सेल्फ मेड रेमेडीज मत दो। सेल्फ मेड रेमेडीज काम नहीं आएंगी, शास्त्रों में जो लिखा है जस्ट फॉलो द सेम। तो आप इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में आप कर सकते हो। देन द पोजीशन ऑफ द टॉयलेट, द बेस्ट शुड बी इन द W&W। नॉर्थ वेस्ट में आप कर सकते हो, ईस्ट साउथ ईस्ट में, बट शुड नेवर बी इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ द हाउस। तो आप किसी के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर टॉयलेट आ, अगेन दिस इज नॉट रेक्टिफिकेबल। इसकी कोई भी रेक्टिफाई करने की रेमेडीज नहीं, बस इसकी एक ही रेमेडी है रेक्टिफाई करने की, कि आप वहां पर से टॉयलेट सीट हटाकर उसको बाथिंग रूम बना सकते हो। बट अब नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द अपार्टमेंट, लेट्स से समबडी लिविंग इन द अपार्टमेंट एंड इन द नॉर्थ ईस्ट दे हैव अ टॉयलेट। अब लेट्स से कि उन्होंने वो बाथिंग रूम बना लिया, दिस इज ऑप्शन एज अ वास्तु कंसल्टेंट यू कैन गिव टू देम। बट लॉजिकली आप समझो तो उसके ऊपर जो रह रहा होगा वो नॉर्थ ईस्ट में ही वॉशरूम हुआ है उसका, और जो नीचे रह रहा होगा उसका भी नॉर्थ ईस्ट में ही वॉशरूम। यस मैम। तो देखा जाए तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैम क्या करेंगे फिर? इस केस में भी आपको बोलना चाहिए दैट यू शुड चेंज द फ्लैट। मैम आई हैव वन क्वेश्चन हियर। मैम हम्म जैसे अगर किसी के घर में हेल्थ इश्यूज है, लाइक आई नो जिनको नॉर्थ ईस्ट का था और हम्म आंटी को कैंसर हो गया, और वो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा था इनिशियली जब तक उन्होंने रेमेडीज नहीं करी। फिर हम्म उन्होंने रेमेडी करी, अब वो अपार्टमेंट में ही रहते, मैम हम्म उनको भी। आपको उसकी पैसे की वैल्यू करनी चाहिए, मेक देम क्लियर आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे इफ यू आर स्पेंडिंग दिस मच ऑफ अमाउंट टू। ओके, तो अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में अगर वॉशरूम आ गया, दैट इज अ प्रॉब्लम, यू हैव टू चेंज द हाउस और यू हैव टू सेल आउट दिस थिंग। सो बालकनीज वाला आई बिलीव आपको समझ में आ गया कि नॉर्थ ईस्ट में होता है। अब फॉर मेन, अब कोई घर में रहने वाला कोई लड़का है, मेल है, और उसको अपने शादी की लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर फेसिंग प्रॉब्लम इन गेटिंग मैरिड और अट्रैक्टिंग द राइट पार्टनर, उसका पार्टनर के साथ नहीं बन रही है, या फिर उसको पार्टनर मिल नहीं रहा है, तो एक लड़के के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्शन इज कनेक्टेड टू द वीनस, और जो कि होता है फॉर मेन दैट इज अ साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट के लिए आपके घर के कोई मैन है, उनको प्रॉब्लम आ रही है, मतलब उनको शादी करने में प्रॉब्लम आ रही है, या दे आर फेसिंग प्रॉब्लम इन देयर रिलेशनशिप, देन साउथ ईस्ट में उस मेक श्योर करना है कि आपका जो घर का साउथ ईस्ट है दैट नीड टू बी क्लीन। लाइट अप ए घी लैम्प इन द साउथ, प्ले द श्रीम मंत्रा इन द साउथ। जो आपका साउथ ईस्ट का जो डायरेक्शन होता है दैट विल बी कनेक्टेड टू द वीनस। तो अगर आप साउथ ईस्ट में अगर श्री मंत्रा लगाते हैं, दैट ऑल्सो हेल्प यू टू एनहांस दैट एरिया। आपको श्रीम की पेंटिंग लगनी है, और वहां पर बर्न द कैम्फूर विद द रोज पेटल। आपको ज्यादा से ज्यादा अपने साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रोज की स्मेल रखनी चाहिए, और आप वहां पर नेचुरल रोज भी रख सकते हो, या फिर आप कैम्फूर, जो डिफ्यूजर्स में कैम्फूर आते हैं जिसमें रोज फ्रेग्रेंस आती है, वो भी आप अपने साउथ ईस्ट में रख सकते हो टू इम्प्रूव योर साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अप्लाई द रोज फ्रेग्रेंस देयर। तो आप रेगुलरली अगर वहां पर रोज फ्रेग्रेंस अप्लाई करते हो, तो जो लड़का जो रहने वाला है उसका उसका जो साउथ ईस्ट है वो इम्प्रूव होएगा, जैसे जैसे उसका वीनस इम्प्रूव होएगा, दैट विल हेल्प देम टू अट्रैक्ट द राइट पार्टनर। वुमेन्स के लिए कौन सा होता है? वुमेन्स के लिए मेन प्लैनेट होता है फॉर देयर मैरिज इज अ जुपिटर, जो कि होता है आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। सो मेक श्योर इट इज क्लीन ऑर्गेनाइज। भीम सेनी कैम्फूर आपको 3 टाइम्स इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपको डिफ्यूजर में लेना है, और पूरे दिन 24/7 आपके यहाँ वो जलते रहना चाहिए इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। कीप शिव विद गॉडेस पार्वती आइडल है। अगर एक लड़की को वहां पर रहने वाले घर में अगर शादी में प्रॉब्लम आती है, देन यू कैन कीप द पिक्चर ऑफ शिव विद गॉडेस पार्वती एंड प्रे, मतलब उस लड़की को वहां पर बैठकर डेली प्रे करना चाहिए। इसके साथ ही आप वहां पर सिट्रीन रख सकते हो, टर्मरिक इन अ बाउल इन द नॉर्थ ईस्ट। इवन अपने नॉर्थ ईस्ट को आपको एनहांस करने के लिए आप टर्मरिक भी रख सकते हो। चाहे तो आप लाइक होलसम जो हल्दी की गांठ आती है, आप हल्दी की गांठ भी रख सकते हो नॉर्थ ईस्ट में, या फिर आप बाउल में हल्दी भी रख सकते हो। प्ले शिव विद पार्वती नमः, आपको हमेशा शिव भगवान जी और पार्वती जी के मंत्रा आपको अपने नॉर्थ ईस्ट में अगर आप रेगुलर बेसिस पर चलाएंगे, तो घर पे रहने वाली लड़की की शादी भी जल्दी होगी, सो दैट जुपिटर विल बी इम्प्रूव्ड इन द हाउस। इफ यू आर सेलिंग एनी बिजनेस, एनी क्वेश्चन ऑन दिस मैरिज वाला पार्ट? नो मैम, ठीक है, एक्सपीरियंस कर लिया मैम हमने। ओके। इफ यू आर इनटू सेलिंग बिजनेस और वांट टू सेल समथिंग, जैसे कि किसी का सेलिंग का बिजनेस, लाइक
कोई भी चीज़, जैसे कि आपकी कोई दुकान है, आप कोई कपड़े बेचते हैं, आप कोई प्रोडक्ट्स बेचते हैं या कोई भी सेलिंग की कोई भी सामान बेचते हैं, देन व्हाट यू नीड टू डू लाइक और इवन आप अपनी प्रॉपर्टी को भी सेल आउट करना चाहते हो, लाइक आपके पास बहुत सारे लोग होते हैं एंड दे विल सेल दैट आई वांट टू सेल आउट दिस प्रॉपर्टी। In that case, what you need to do is keep the papers of the property in the northwest of the house. Northwest means जो भी चीज आप अपने नॉर्थ वेस्ट में रखते हो वो चीज जल्दी बिकती है। तो आप वहां पर इफ यू आर सेलिंग बिजनेस कीप द आइटम्स इन द नॉर्थ वेस्ट सून ऑल योर प्रोडक्ट्स विल बी सोल्ड। तो आप अपने नॉर्थ वेस्ट में आप अपने बेचने का सामान रख सकते हो, या हम ऐसे बोल सकते हैं किसी की शॉप है तो उसको कोई भी सामान अगर बेचना है तो अपनी शॉप के नॉर्थ वेस्ट में रखे। तो अगर वो अपनी शॉप के नॉर्थ वेस्ट में रखता है देन थिंग्स विल बी सेल आउट। किसी बंदे की प्रॉपर्टी सेल आउट नहीं हो रही है एंड दैट पर्सन इज वेरी मतलब उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, वो अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट करना चाहता है, तो आप अपने प्रॉपर्टी के पेपर नॉर्थ वेस्ट में जाकर रख देंगे। हाई पॉसिबिलिटी होती है कि आपकी प्रॉपर्टी जल्दी सेल आउट हो जाती है। एनी क्वेश्चन? नो मैम। व्हाट यू शुड डू, विच डायरेक्शन इज टू काम द माइंड। घर पर रहने वाले लोगों का दिमाग बहुत शांत नहीं रहता है, बहुत एग्रेसिव रहता है, बहुत इम्पल्सिव रहता है। देन कीप द नॉर्थ वेस्ट क्लीन, हाइड्रेट योरसेल्फ वेल, एड इंग्रेडिएंट व्हाइल ड्रिंकिंग द वाटर। तो आपके घर का जो नॉर्थ वेस्ट है, अगर आप अपने घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को अगर आप क्लीन रखते हैं, इससे आपके घर पर रहने वाले लोग काफी काम होंगे। और अगर आपका नॉर्थ वेस्ट किसी तरीके से कटा है या पूरा नहीं है तो रहने वाले लोगों को काफी अनपीस होती है एंड दे विल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम लाइक एंजाइटी टू। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, अगर आप उनको कोई रेमेडी देना चाहते हो देन यू शुड गिव देम द रेमेडी ऑन द डेली बेसिस, दे शुड ड्रिंक द वाटर। और अगर आपको काफी ज्यादा किसी को एंजाइटी है या उसको दिमाग में पीस नहीं रहता है, या अगर आप बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर आप उसका बर्थ चार्ट भी पढ़कर पता कर सकते हो, उसका कई तरीके से मून प्लैनेट अफ्लेक्टेड है जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग होती है, देन ऑलवेज आस्क दैट पर्सन टू ड्रिंक द वाटर एंड ऐड द इंग्रेडिएंट्स इन द वाटर। कभी भी ऐसे लोगों को प्लेन वाटर नहीं पीना चाहिए, लाइक आप उसमें केसर ऐड कर दो, आप उसमें हल्दी ऐड कर दो, आप उसमें अदरक ऐड कर सकते हो, वट एवर प्लानट यू वांट टू एनहांस। सो मेक श्योर आप ड्रिंक पानी पी रहे हो बट प्लेन नहीं पी रहे हो। दिस affects the moon and the birth chart directly as a significator of the mind. Place some pearls under the ground in the northwest region to strengthen the moon. अगर आप चाहते हो कि आपके घर पर रहने वाले लोगों को पीस हो तो अपने नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में आपको वहां पर पर्ल्स, मोती को आपको गाड़ना चाहिए। इवन इफ यू कांट, मतलब आप अंदर नहीं डाल सकते हो तो आप अपने नॉर्थ वेस्ट में एक बाउल में कर कर, चांदी के बाउल में रखोगे तो बेस्ट है, बाउल में कर कर आप पर्ल्स भी रख सकते हो, इट विल बी गोइंग टू गिव यू द सेम इफेक्ट। एनी क्वेश्चन? नो मैम। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टुमारो एंड टेक